So, what's your plan for Christmas, New Year? My plan for Christmas, I believe I'm going to Dubai for the day. Then New Year's, I have no idea. I'm trying to convince my husband to go to Las Vegas, so we'll see. So, how has 2015 been for you? Exciting? 2015 has been a very exciting year. A lot of amazing things have happened. A lot of crazy, weird, outrageous things have also happened this year. But from all the bad things, you learn how to grow from them. And I created such an amazing team because of all those weird things that happened. So I'm very happy about that. Sorry, today only the trailer of Latika Dek release. How's the response? Did it release already? No, the teaser shows released. too. Yeah. Response been? The response has been amazing to the trailer so far. We've been showing private showings to a lot of the press and everybody, trying to get everybody excited about the movie, and it's been received pretty well. We've got a lot of laughs. We got a couple of people that were a little shocked, but all in a good way. Recently in an interview you said that you want to experience motherhood. I want to experience. Want to experience motherhood. Oh, yeah, I don't know why somebody would twist my words, and I will set it straight here. Of course, it's something that I think about. I think every woman does, most women do. But it's not something that's happening right now or in the very near future. So, is production happening in near future? Ladies first. Yes. Is production happening in near future? You wanted to get into production, right? Yeah, I launched my own production company this year. It's called Sin City, and we will produce a movie. I just shot the teaser for it, and I hope that people are going to enjoy it. Sunny, is there any demand from your side in terms of role you get from directors? I mean, is there a kind of role that you want? Is there something that you tell the producers that this is the kind of role I want? You know what, when producers and directors come to you or writers come to you, they come with their own individual story, their own ideas. And I believe if the general idea of the story, if their script is not finished, then that's something that I look at. And if there's something that I want to change, usually I don't want to change something because it's not my vision, it's their vision. And it's our job as actors and actresses to complete that vision. What do you want to make as a producer? You just said you shot a teaser or something for your movie. What exactly is it? I want to shoot a superhero movie. I know, you're making a face, but when you see it, you'll love it. No, I'm just a little taken aback, unexpected. It's something that I grew up with. It's something that I'm passionate about. I'm a little bit of a nerd and a geek. I love my superhero movies. I love my comic books. I grew up playing video games and having these characters that were the superhero in my video game. So now I want to create that. Brilliant. Your favorite actor in Bollywood? My favorite actor, male actor? As far as commercial, masala, drama, I always love Salman Khan, Shah Rukh Khan. What about Salman Khan? His birthday is right up on the weekend. Would you like to wish him? Hi Salman, it's me Sunny. I want to wish you a happy birthday and I hope all your dreams and wishes come true this year. Could you please wish our viewers a Merry Christmas? Who are your viewers? All. Okay. Hi everyone, I want to wish everybody a Merry Christmas, Happy New Year, Happy Hanukkah, Happy Holidays, whatever you're celebrating this year. Please be safe and I'll see you at the movies. Thank you. सोनाक्षी जो है ऑफिशियली सिंगर बनके आने वाली टी सीरीज का सिंगल करे, क्या कहना चाहेंगे उनके सिंगिंग टैलेंट के बारे में? ये टैलेंट बहुत ही हिडन टैलेंट है जो कि हमने डिस्कवर किया उसके भाई कुश की शादी पे। और हम सुनते रहते थे कमरे के अंदर कि बहुत म्यूज़िक चल रहा है और कुछ आवाज़ें आ रही है और हमें लगता था कि शायद तैयारी कर रही है फॉर द संगीत एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड सडनली
संगीत के दिन हमने रियलाइज किया शी वॉज ऑन स्टेज एंड शी स्टार्टेड सिंगिंग विद निकाश, विच वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, रियली बिग सरप्राइज। तो मैम इसकी उन्होंने कहीं ट्रेनिंग ली है कि नेचुरल है? नहीं, जैसे कि एक्टिंग में उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, डांस में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, उसी तरह सिंगिंग में भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। आप क्या चाहती थी, वो एक्ट्रेस ही बन चुकी है या सिंगर? No, no, no. I would like her to, to show all her talent. She is a fashion designer. She's an actor. She is now becoming a singer, and God willing, not many things. बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, जितना भी अचीव कर ले, लेकिन माँ बाप की चिंता होती है कि बेटी की शादी हो। तो आप लोगों के मन में कुछ ऐसा चल रहा है सोनाक्षी की शादी को लेकर? नहीं, हमने उसको बिल्कुल क्लीन चिट दिया हुआ है कि जब वो कहेगी, अगर कल उसको करनी है हम उसकी शादी कल भी करा देंगे, लेकिन शी वॉन्ट्स टू वर्क, शी वॉन्ट्स टू बी इन द इंडस्ट्री फॉर सम टाइम, एंड बट हमारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मैम कुछ क्वालिटीज देखती हैं आप अपने फ्यूचर सन इन लॉ में, कुछ क्वालिटीज जो आप देखती हैं? मेरी क्वालिटीज देखने से क्या फर्क पड़ता है, उसको पसंद आना चाहिए, उसको क्वालिटीज देखनी चाहिए। कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मेरा सन इन लॉ ऐसा होगा, कुछ Yeah, I would want she gets her dream man, that's it. Yeah. Thank you. आयुष्मान, अभी आपका नया गाना आया है यही हूँ मैं, जी। उसके बारे में कुछ बताएं। यही हूँ मैं, हाँ, एक नया गाना है और 3 मिलियन व्यूज़ हो गए उसके 6 दिन में, विच इज़ रियली कूल, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड फैक्ट दिस इज टेक्निकली मैं फर्स्ट हिंदी सिंगल, अभी तक मैं पंजाबी सिंगल्स कट किए थे, सो इट्स अ गुड मिक्स ऑफ सॉफ्ट रॉक एंड फ्यूजन ऑफ EDM, सो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। कोई गाना जब आप बनाते हैं, जब उसे फील करते हैं, तो आपकी पूरी टीम साथ होती है कि ये होना चाहिए, या फिर आपका decision? नहीं, आई थिंक ये मेरी पूरी टीम है जो बचपन से मेरे साथ में है। माई को कंपोजर रोचक कोहली इज ऑल्सो लिरिसिस्ट, एंड फैक्ट जो बाकी लिरिसिस्ट हैं वो मेरे जूनियर्स हैं कॉलेज के, गौतम शर्मा एंड गुरप्रीत सैनी। सो आई थिंक वी हैव दिस क्यूट फैमिली टू राइट लिरिक्स एंड कंपोज म्यूजिक। जहाँ तक आज की रात की बात करें, तो कौन सी फिल्में हैं जिनकी तरफ ज़्यादा मुतासर हुए हैं कि ये फिल्मों को अवार्ड मिलना चाहिए, या फिर ये फिल्में मेरे हिस्से में आती है? आई थिंक मुझे लगता है कि दमलगा के एक्टर को अवार्ड मिलना चाहिए, और उसके अलावा पीकू को अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि माय उस्ताद शुजित सरकार has made that film and it's one of the best films this year 2015, so I guess I'm rooting for Damlaga ke Aisha and Piku. Your brother's going to make an acting debut this year with Dangal. Yeah. I mean, in 2016. What are your sentiments on that? It's a big film. He's playing an opponent to Amir Khan. Yeah. In fact, yeah, I'm quite proud of my brother Parshakti that he's carved out his own path, and it's a big film. इतनी बड़ी फिल्म मैंने भी नहीं की अब तक जितनी बड़ी फिल्म उसने की है, and I'm glad कि उसको अपने बलबूते पे ये काम मिला है, and he's good with the language, good with the dialect, so that's why he deserved it, and he's pretty good. Thank you so much. 2015 को किस तरह याद करना चाहेंगे? 2015 बहुत मिक्स बैग ईयर था फिल्मों के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्में भी आई यहाँ पर, काफ़ी कंटेंट बेस्ड फिल्में आई, चाहे वो दमलगा के हेशा हो, तलवार हो, पीकू हो या मसान हो, और मुझे लगता है हर एक फिल्म हर एक साल ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो कंटेंट के बेसिस पर अपना कमर्शियल सक्सेस भी लेकर आती है। So, New Year wishes and New Year plans, if you can share with us. New Year plans, in fact, for all the, I think artists, New Year's normally busy होते हैं, you're either performing or going somewhere. So I guess New Year's, it's like working New Year's for every artist. But your New Year wishes now? Yeah, of course, to all the viewers, a very happy New Year from Ayushmann Khurrana. आयुष्मान, कभी आप चाहेंगे कि फ्यूचर में आप जो फिल्में कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप ही का म्यूजिक हो, आप ही गाएं? ऐसा नहीं है, इतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं लाइफ में कि मेरे म्यूजिक को हर फिल्म में मैं ही गाऊँ। इनफैक्ट दमलगा के आयशा में एक डेलिब्रेट एफर्ट था कि मैं ना गाऊँ, क्योंकि मैं उसमें कुमार सानू का फ़ैन था, और इसलिए आई थिंक म्यूजिक मेरा अलग है, एक्टिंग मेरी अलग है, तो आई थिंक आई वुड कीप द एक्टर अवे फ्रॉम द सिंगर। थैंक यू। Thank you. Thank you. So, can you tell us exactly how this year has been? What exactly were the highs and lows for you? It was a great year for me. I had fun. Like, actually, I was doing theatre also this time, and right now I'm doing Sarabjit. That's a big thing for me, because another biopic I'm doing. I think it's every actor's dream to do any biopic, and I'm doing second film after Maricom. And this is very tough role, and I'm playing Awais Sheikh, who's Pakistani, and he has fought for Sarabjit and his sister. So his journey was totally different, and going against Pakistan and helping Sarabjit staying in Pakistan was very tough.
So playing that character, I'm very much enjoying, and I'm working with Randeep, who's my in my theatre group. We have done many shows together, so now performing together, that's a different thing. And working with Ash, who's very professional and who's damn beautiful. So today I'm just coming from there only. We had good scenes, and I'm enjoying it. That's a good thing for me. Where exactly are you guys shooting? You were shooting on the outskirts of the city a while back, and now. Yeah, we were shooting Palghar, but right now we are shooting at Four Bungalow. So that's That's brilliant. What are you looking forward to in 2016 apart from Sarabjit? I'm doing another film which is a I can't say rom-com, but it's a love story which has political background and it has actions also. So that's I'm doing another film also which is totally different from these films which I have done, which is very challenging. For that I'm learning advanced kickboxing classes. So I think 2016 would be different and amazing for me. Thank you so much. Thank you. Hello. What's up? You tell us, Shahid, how has 2015 been for you? Awesome. Eventful? It's a great year. I got married in 2015, so it will be a year that I'll remember for a long time to come. And yeah, all good. You tell me. Do you have any questions? Lots of questions. Ask me. So, Shahid, there are rumors that you've been signed to the remake of a Telugu film called Eti. We don't know. Even I don't know. Who's supposed to be making this film? It's a South remake, and No, no such thing. The only film that I'm shooting right now is Rangoon, and I've heard this for the first time myself. शाहिद शानदार फिल्म जो एक्सपेक्टेशन से खरी नहीं उतरी, आपको कितना हर्ट हुआ, कितने एक्सपेक्टेशन थे फिल्म से? सर, कोई भी फिल्म वर्क नहीं करती है तो बहुत दुख होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत गुस्सा आता है, बहुत पेन होता है. You go through all the emotions that you go through when you go through a breakup. I think that's how dealing with a film is similar. शायद जब भी किसी कैरेक्टर के में ज़्यादा अंदर डीप में जाना हो या उसको अच्छे से जीना हो तो आजकल के एक्टर्स मुझे बढ़ा लेते हैं और ये काम आपने भी कर दिया. अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मुझे बढ़ाने से मैं कैरेक्टर में ज़्यादा डीप चला जाऊँगा. नहीं तो मैं पहले ही कर लेता है. तो मेरे को 12 साल के बाद क्यों बताई ये बात? सर, ये मुझे बढ़ाना क्या रहा है? मतलब उसके अलावा उसके कुछ और भी कर सकते थे आप. क्या होगा हूँ फिर मैं? मतलब सभी कर रहे हैं. सर मुंडवा लिया मैंने हैदर में, दाढ़ी रख ली, स्टबल रख ली मैंने शानदार में. और एक्चुअली ये डिसीजंस जो होते हैं मेरे भाई वो डायरेक्टर्स लेते हैं कि किस फिल्म के अंदर कैसा लुक होना चाहिए और वो कैरेक्टर के हिसाब से होता है. तो डीप एक्टिंग में जाने के लिए मूंछ उगाने ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, बट हो सकता है ऐसा होता हो. बट ये मूंछ मैंने इसलिए उगाई है बिकॉज रंगून जो फिल्म मैं कर रहा हूँ जो 1940s में बेस्ड है उसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ और उस वक्त आर्मी ऑफिसर ज़्यादातर इस तरह की थोड़ी लंबी टाइप की मूंछ रखते थे. तो विशाल सर को लगा कि शायद ये फिल्म के लिए सही है. आई होप प्लीज़ आप भी ऐसा मानिए और मैं भी ऐसा मानना चाहता हूँ कि मैं उनका फेवरेट हूँ. Shahid, have you taken Meera to a set? Have you shown her how things are shot? Because so far she's seen things on the big screen. She's my wife and she travels with me very often. So of course she's gone to. I don't need to take her anywhere. I think she's rather independent. तो वो खुद ही आती हैं and she actually knows most of my friends. वो set पे भी आ चुकी हैं. वो सब एक्सपीरियंस कर रही हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता हूँ और मैं भी वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो वो अपनी निजी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करती हैं. Anything in particular that she points out to you while she's on set? ये अच्छा नहीं था या ये बहुत अच्छा था? Any I mean, inputs that she gives just you? the same way as people who are my friends or family जो who care about me, तो उसी तरीके से वो भी मुझे बताती हैं उनको क्या फील होता है and her opinion is very important to me. सर, आपकी फैमिली डिस्कशन में चलती किसकी बैंक की चलती कि आप उनको बताते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए? यार तू तेरी शादी नहीं हुई ना, कर लेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा किसकी चलती है घर के अंदर. आ रहा हूँ मैं, आज ही आ जाऊँगा. Shahid, New Year wishes. Yes, wishing everybody a very very Merry Christmas, wishing everybody a very very Happy New Year, a safe New Year, a positive year ahead.
geared up, all dressed up. तो परफॉर्मेंस है, नॉमिनेशन है, आप किस तरह का पार्टिसिपेशन है आपका? मैं परफॉर्म कर रही हूँ और मेरी पहली परफॉर्मेंस है किसी भी अवार्ड फंक्शन में। तो पहली बार मैं किसी अवार्ड फंक्शन के मंच पे परफॉर्म करने जा रही हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी नर्वस हूँ। आई होप कि सब ठीक जाए और मैं कोई स्टेप्स भूलूँ नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस है, डिफरेंट डांस फॉर्म्स कर रही हूँ मैं इसमें। डांस इज़ समथिंग जो मैं बचपन से बहुत मुझे शौक़ रहा है, तो कभी भी मैं डांस फॉर्म्स सीख नहीं पाई एक्सेप्ट फॉर कथक। थोड़ा बहुत प्रेमिका वाला गाना करते हुए सालसा किया था, हल्का थोड़ा बहुत, बट इसमें आई एम डूइंग मच मोर। आई एम डूइंग कंटेम्प्रेरी, आई एम डूइंग बेली डांसिंग, आई एम डूइंग हिप हॉप, आई एम डूइंग सालसा, सो इट्स गोइंग टू बी फन परफॉर्मेंस। Congratulations for Dilwale again. Thank you, thank you. So how has the like response been? And I'm sure आपका like messages से भरा होगा. रिस्पॉन्स इज़ बिन रियली गुड यार। फैमिली फिल्म है और आई थिंक बहुत टाइम बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो आप पूरी फैमिली के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के देखने जा सकते हो। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि मॉम डैड के साथ देखने जा रहे हो तो सोचना पड़ता था यार ये फिल्म में कोई सीन ना हो, या देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इट्स अ क्लीन फिल्म, इट्स अ हैप्पी फिल्म एंड माई फैमिली इज़ वॉच्ड इट, देव रियली लाइक्ड इट, ऑल माई रिलेटिव्स हैव सीन इट, देव एंजॉयड इट। So yeah, I'm really glad that it's making people happy. कृति मैम, आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके सामने? मतलब आप चुन रही हैं? आई थिंक हमेशा दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको किसी फिल्म के ऑफर्स आते हैं और उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है या आपको जो अच्छा लगता है या जो इंटरेस्टिंग लगता है आप वो चुनते हैं। सो आई थिंक फिल्म भी आपको चुनती है एक तरह से, आप भी फिल्म को चुनते हैं। कुछ डिमांड रहती है आपकी कि मुझे ऐसे रोल करने हैं या फिर मुझे ऐसा कुछ करना है? आई थिंक मैं बहुत इंस्टिंक्टिव रहती हूँ जब फिल्म्स की बात आती है, स्पेशली क्योंकि नरेशन जब हम सुनते हैं, कोई भी फिल्म की एक कहानी सुनते हैं, तो कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको बहुत पसंद आए, या तो वो कहानी सुनते हुए आपको बहुत अच्छी लगे और मुझे लगे कि यार ये पिक्चर मुझे देखनी है एज एन ऑडियंस, तो मैं ये करना चाहूँगी। या फिर कई बार होता है कि कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, आपका रोल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और कई बार डायरेक्टर इतना अच्छा होता है कि आपको उनके साथ काम करने की इच्छा होती है। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन और एटलीस्ट वन और टू ऑफ देम। The film that I have signed so far is it's opposite Sushant. It's not titled yet. It's been directed by Dinesh Vijan. It is a beautiful story and it's got a really nice role for me as well. And I can't wait to just start prepping for it. उसमें काफ़ी preparation required है, and we start rolling next year around Feb and March. So yeah, that's a special project. Thank you so much. Wishing all the viewers a very 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 happy New Year. You haven't? No, I just landed yesterday. And I couldn't watch it over there because I was shooting, and I haven't had time to see it because I'm doing this and now I'm doing promotions for the film. So I don't know when I'll see it. प्रियंका, बाजीराव मस्तानी बहुत अच्छी कर रही है थिएटर्स में। ऐसा कह सकते हैं कि शाहरुख और काजोल की फिल्म को टक्कर दी है बाजीराव मस्तानी ने। मतलब मैंने हमेशा कहा है कि इस गंदे कंपैरिजन में प्लीज़ फिल्मों को ना लाएं। फिल्म्स आर आर्ट, फिल्म मेकिंग इज़ अ क्राफ्ट। दोनों फिल्मों ने बहुत मेहनत की है और उसको बिरेट और बिलिटल ना कीजिए। दोनों बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने अपनी फिल्म नहीं देखी, मैं दूसरी कैसे देखूंगी, बट ये कोई ना तो कंपैरिजन है, एंड इट्स शाहरुख एंड काजोल। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं कर सकते। इट्स द गोल्डन कपल ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या आपको लगता है कि ये जो क्लैश हुआ है बॉक्स ऑफिस, इसको अवॉइड किया जा सकता था? क्योंकि क्लैशेस आएंगे, हमेशा आएंगे, हिस्ट्री में हमेशा आए हैं और आते रहेंगे। इतने ही रिलीज डेट्स हैं और बहुत सारी फिल्में हैं, तो आप नहीं अवॉइड कर सकते। इनफैक्ट वी हैव टू एज अ मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल एंड एज पीपल लर्न टू एम्ब्रेस कि दो फिल्में एक साथ आ रही हैं। बाय द वे, इन दोनों फिल्मों की वजह से स्टार वॉर्स आगे गई है गाइस, हमको तो उस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रियंका मैम, जब आपको ये बाजीराव मस्तानी की स्क्रिप्ट सुनाई जा रही थी, तो आपने कभी इंसिस्ट नहीं किया डायरेक्टर से कि दीपिका वाला रोल आपको करना है? कि आपने फिल्म देखी है? तो मैं क्यों करती? काशी पसंद आई? मुझे पसंद है। मेरा घर देखना गार्डन बन गया। मैं सबसे पहले कास्ट हुई थी इस फिल्म में। मुझे याद है संजय सर जब आए थे मुझसे, आई एम नॉट अ एक्टर जो कैसे कहूँ उसको, कि टाइटल पार्ट के लिए या मेरा काम कितना लंबा है या मेरा चेहरा पोस्टर पे है कि नहीं। मेरा चेहरा पोस्टर पे मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आई एम दैट काइंड ऑफ एक्टर। मैं अपने काम को बहुत ऑनेस्टली करती हूँ।
मेरा काम मेरे लिए ऑलमोस्ट रिलीजियस है, मेरे लिए वर्शिप की तरह होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो मुझे भगवान ने बहुत बरकत दी है, बहुत अप्रिसिएशन दिया है। एंड सच्ची में मैं ऑफ कोर्स जब अवार्ड्स मिलते हैं तब अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह एज एन आर्टिस्ट हम लोग अपलॉज के लिए काम करते हैं, तो जब ऑडियंस तारीफ़ करती है और ताली बजाती है और पसंद करती है, उतना सबसे बड़ा होता है। तो जी हाँ, मुझे काशी बाई का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इसीलिए क्योंकि मैं काशी की तरह बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। एज अ मॉडर्न गर्ल ऑफ टुडे अगर मेरे हस्बैंड को किसी और से इश्क हो जाए तो मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के चली जाऊँगी ना, लेकिन काशी ऐसा नहीं कर सकती थी उस ज़माने में। उसको उसकी ज़बान बंद कर दी गई थी, उसको तभी भी पेशवा की बीवी पेशवन बाई बन के ज़िंदगी पूरी भर जीना पड़ा। उसने इनफैक्ट बाजीराव और मस्तानी की डेथ के बाद शमशेर जो उनका बेटा है उसको अपने बेटे की तरह रेज़ किया। तो ये सब ऐसा कैरेक्टर था जिसको हिस्ट्री भूल गई थी। मेरे लिए वो बहुत अच्छा लगा मुझे वो कैरेक्टर प्ले करना। अब आप भंसाली की इतनी फेवरेट हो गई है, he really wants to work with you in future also. In fact, we're hearing Gustafia is what he is cast you in. Sanjay sir and I have been speaking about a lot of films, and we have been from since Marycom, Ramleela actually. Unfortunately, I am a little stuck with time, so I can only do 1 or 2 films next year because my Quantico का season extend हो गया है. So I'm right now in the middle of figuring out what I'm doing. But I am a blatant Sanjay Leela Bhansali fan. जो भी 2015 की फिल्में थी, कोई ऐसी फिल्म जिसका आप चाहते हो कि इसका हिस्सा आप रह पाती? मैं जिस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ उस फिल्म का हिस्सा हो जाती हूँ। सबको ये 2015 मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग साल रहा है, बहुत अच्छा साल रहा है। लोगों ने मेरे काम को बहुत सराहा है एंड मैं बस यही कहूँगी कि जो अच्छी दुआएं मुझे मिलती हैं वो प्लीज़ देते रहें, उसकी बहुत ज़रूरत है। और कुछ नहीं चाहिए, बस कि दुनिया खुश रहे, पीस रहे और 2016 भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे एंड आई होप द वर्ल्ड बिकम्स अ पीसफुल प्लेस। थैंक यू। क्वेश्चन कि परिणीति जी के काम को कुछ आपसे एडवाइस करती है कि अपने स्क्रिप्ट लेके आते हैं आपके पास कि ये करना चाहिए कि वो आपसे पूछती है? नहीं, उसको ज़रूरत भी नहीं है। वो एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और उसको अपने बलबूते पर चलना है, अपने बलबूते पर खड़ी हुई है जहाँ पे है आज, और उसको ना तो मेरी और ना तो किसी की कभी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू। थैंक्स गाइस।
अगर मैं कुछ डिसाइड करती हूँ तो लेटर डिसाइड करती हूँ। लाइफ ज़िंदगी से सीख के मैं बोलती हूँ कि ये मिस्टेक मैं वापस नहीं करूँगी। नीरजा के प्रोमो को कैसा रिस्पॉन्स रहा है आपका? अच्छा ही रहा है, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। आई थिंक नॉट ओनली पीपल आर ओनली लाइकिंग इट, आई थिंक पीपल आर कनेक्टिंग विद इट, पीपल आर गेटिंग मूव्ड बाय इट। और ऐसा रिस्पॉन्स देके बहुत ही खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है मेरे हिसाब से जो लोगों को इंस्पायर करेगी। एंड इट्स अ फिल्म दैट नीड्स टू बी वॉच्ड because it shows a girl trying to do the right thing. It's not only about a girl, it's about always trying to do the right thing. वो 23 साल की लड़की थी, she saved 359 passengers despite knowing the threat to her life. तो ऐसा the courage that somebody shows in the face of fear is true courage. सोनम, आमिर खान ने भी प्रोमो की तारीफ की और राम आदवानी को कांग्रेचुलेशन। हाँ जी। क्या आमिर को बहुत कम चीज़ें पसंद आती, कम फिल्में पसंद हाँ आती, क्या जी। किया? लास्ट टाइम आमिर ने रांझना के बारे में ट्वीट किया था और उसके बाद मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई थी ऑनेस्टली। जो जैसे फिल्म्स मुझे मिले रांझना के बाद और जो अप्रिसिएशन मिला वो बहुत ही डिफरेंट था। होपफुली नीरजा के बाद भी वो ही चीज़ होगी। तो मैं आमिर की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। आई रियली लुक अप टू हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन एंड इफ ही इज एंडोर्सिंग नीरजा आई एम वेरी हैप्पी विद इट। whole thing about you guys doing a chick flick, as in you, Katrina, there's Anushka, there's this big lineup of girls that we said कि chick flick कर रही है। अभी हमने उसका एक छोटा सा नज़ारा देखा। You guys bond very well. Is there a chick flick in the offing that you're going to be doing? There are lots of movies in the offing, but right now I'm doing a film with my sister which is going to be directed by Shashank Ghosh. The cast will be finalized and announced very soon. अभी कोई स्क्रिप्ट जिसमें हम अनिल सर को आपको साथ में देख पाएं? No, not even on stage. रणवीर, बहुत बधाई हो पहले तो। क्रिसमस गिफ्ट मिल गया लगता है। मतलब अभी क्रिसमस का दिन होना है यार। होपफुली फिल्म जैसा रन पा रही है वो क्रिसमस तक भी, न्यू ईयर तक भी जारी रहे। बहुत खुशी है पूरी टीम में कि फिल्म का रिस्पांस इतना बढ़िया आया है। बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हम, पूरे 1.5 साल की मेहनत रंग लाई है और बस बहुत खुशी का दिन है आज। रणवीर, बाजीराव ने तो मस्तानी से मोहब्बत की थी, दर्शक भी आपकी परफॉर्मेंस से मोहब्बत कर रहे हैं और सब लोग आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट दे। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको बाजीराव को? संजय भंसाली साहब ने मुझे कहा कि आई कैन नॉट इमेजिन बाजीराव मस्तानी विदाउट यू एज माई बाजीराव। कल अमिताभ बच्चन भी स्टारडस्ट अवार्ड में मिले थे, क्या कहा उन्होंने? अमिताभ बच्चन साहब ने एक हैंड रिटन नोट मुझे भेजा। वो जब भी मुझे किसी परफॉर्मेंस के लिए मुझे नोट भेजते हैं तो मैं उसे फ्रेम करता हूँ और मैं घर में भी नहीं रखता हूँ, मैं बैंक भेज देता हूँ लॉकर में रखने के लिए। शायद आप इस बात पर हंसेंगे लेकिन वाकई मेरे बैंक के लॉकर में उनके सारे नोट्स पड़े हैं। इट मीन्स सो मच टू मी that a man of living legend, a man of his stature and level of greatness shows such appreciation for my work and praises me in the words that he does. It's really आज सुबह जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि मुझे मेरा पहला अवार्ड मिल गया। So you're going to start Befikre after this? Yes, I'm going to start Befikre after. With Aditya Chopra? With Aditya Chopra. That's like an enviable thing because he's not worked with anybody except Shah Rukh Khan. Yes, So yes, it's a matter of great pride and honor. बहुत गर्व की बात है कि मेरे मेंटोर, मेरे गुरुजी की फिल्म में मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने आज तक जो भी फिल्में बनाई हैं with the one and only Shah Rukh Khan और अब मुझे मौका मिल रहा है to be his leading man. It's a matter of great pride and honor. What is it about the role that really clicked with you? I think just the fact that I get to work with Adi sir is enough of a big deal for me. But I'm happy that I'm collaborating with Adi sir on his freshest story. Whatever you expect normally out of an Aditya Chopra film, this is unlike anything he's ever made before, and I'm very happy to be collaborating with him in his freshest endeavor. बाजीराव मस्तानी देखी होगी, क्या कुछ कहा उन्होंने फिल्म देखी? Actually, for the first time in my 5-year career, I found my mentor at a loss for words. वो फ़ोन पर थे और I could sense, मैं रुका हुआ था कि वो कुछ बोलेंगे, but he was really at a loss and was having trouble finding the words to describe it. But he did say he was very, very proud of me, and that really, really felt great. Have you seen his little baby? Not yet, no. रणवीर सर, क्योंकि जानते हैं आप अमिताभ सर के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी कोई एक फिल्म ली जाए और उसका रीमेक हो तो कौन सी फिल्म चुनना चाहेंगे आप अपने लिए कि मैं उसमें एक्ट करना चाहूँ? शहनशाह। और ऐसा क्यों?
रिश्ते में तो आप तुम्हारे बाप लगते रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाउ शहंशाह मिल गई सर, मिल गई। मिल गई ना अगर देखा जाए तो आप एक एक फिल्म के साथ अपना बात बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि द स्टार द लेवल ऑफ अ सुपरस्टार? No, it's not my place or position to claim that myself. That is for the industry, for the Producers Guild, for the audience, my bap, and for the trade, for my peers, for all of them to recognize and honor me with that title. And I hope to just work, do good work, and keep growing and evolving as an artist, and hopefully, get some accolades along the way, but mostly just entertain people and be the best performer and entertainer that I possibly can be. आखिरी सवाल, आपने कहीं ये कहा है कि रियल लाइफ में आई एम लाइक काशी भाई, ऐसा क्यों Yeah. करते हैं? वो किसी ने पूछा था आपकी ज़िंदगी में कभी लव ट्रायंगल हुआ है, तो मैंने कहा हाँ जी हुआ है, उसमें मैं काशी भाई था. जैसे जोक नो इट्स ट्रू. बहुत दर्द सहने पड़े हैं मुझे दिल के मामले में. नहीं सर, ये लव ट्रायंगल के बाद लव ट्रायंगल भी हुआ है क्या आपके बारे में? हुआ है हाँ जी? आपके साथ? वो एंगल वो एंगल नहीं होता बेटा, क्वाड्रेंगल होता है. रणबीर, where's the party for the success of Baaja? पता नहीं, संजय भंसाली साहब को पूछेंगे, अभी इनवाइट जैसा ही मूड लगेगा. अर्जुन को कितना मिस कर रहे हैं आप? बहुत मिस कर रहा हूँ. मेरा पिया घर आया और कल मिला मैं उनसे बहुत महीनों के बाद, और दिल खुश हो गया मिल के भाई से. और न्यू ईयर के क्या प्लान है आपके? क्योंकि पता नहीं यार, थोड़ा रिलैक्स करना बनता है. इट्स बीन अ वेरी वेरी हार्ड ईयर ऑफ शूट. आगे कौन कौन से अरे बोलने तो दे. तो या जस्ट आई थिंक आई विल टेक अ ब्रेक एंड ट्राई एंड रिलैक्स अ बिट. एक विश हो जाए. न्यू ईयर विश सारे दर्शकों को मेरी तरफ से दिल से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. Thanks. Come this side.